وزیر اعلیٰ مریم نواز کی آئندہ مالی سال میں کاشتکاروں کو 20,000 گرین ٹریکٹر دینے کی ہدایت، مزید 5,000 سپر سیڈرز فراہم کرنے کی بھی منظوری دی۔ ڈپٹی کمشنر لودھا کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی برائے پنجاب ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ کا اجلاس۔ پاک پتن نہر میں 50 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، وسیع زرعی رقبہ زیر آب آ گیا، کھڑی فصلیں تباہ، اطلاع کے باوجود سرکاری مشینری موقع پر نہیں پہنچ سکی۔ ریلوے ایسٹ کالونی فیصل آباد میں گرینڈ آپریشن، 40 سال پرانے ناجائز قابضین سے 40 ملین کی ریلوے اراضی واگزار کروا لی گئی۔ غیر قانونی چمڑا ساز فیکٹری، کھالوں کا گودام مسمار کر دیا گیا۔ اوکاڑا میں دیپال پور چوک اوور ہیڈ برج کے نیچے سپورٹس ایرینا کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ قتل کے مقدمے میں مدعی کی حمایت پر مسلح افراد کا گھر پر دھاوا، فائرنگ سے سرکاری کلرک مارا گیا۔ بھارت کے سٹار بیٹر وراٹ ہیمسٹرنگ انجری کا شکار، افغانستان کے خلاف ون ڈے سیریز سے باہر ہو گئے۔ اداکارہ مائرہ خان کا کہنا ہے کہ صرف ہیروئن نہیں، ہر طرح کے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ السلام علیکم، مشرق ڈیجیٹل کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یسرا شاہد اور میں ہوں محمد شیوینس۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ گھر ہو وہاں سکون کا تحفظ ہو جہاں، اجوا سٹی لالیاں۔ الحمدللہ شیخو پورہ، خانیوال، ساہیوال، پاک پتن، عارف والا میں شاندار کامیابی کے بعد اب لالیاں میں ایک بے مثال ہاؤسنگ سوسائٹی اجوا سٹی لالیاں، خاص ان کے لیے جو بروقت سرمایہ کاری کی اہمیت کو جانتے ہیں، جہاں خوبصورت مین گیٹ، 80، 40 اور 35 فیٹ کے کشادہ کارپیٹڈ روڈز، گرین بیلٹس، اسٹریٹ لائٹس، بجلی، گرینڈ جامعہ مسجد، قبرستان، باؤنڈری وال، انٹرنیشنل معیار کا اسکول، خوبصورت پارکس، پلے ایریا، کمیونٹی کلب، سیولیج، کمرشل مارکیٹ، 24/7 سیکیورٹی اور جدید سہولیات سے آراستہ لالیہ شہر کی پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں 3، 5، 7 اور 10 مرلہ کے رہائشی و کمرشل پلاٹس 15% ایڈوانس سے بکنگ کروائیں اور 25% ادائیگی پر قبضہ حاصل کریں۔ 3 اور 4 سال کی آسان ماہانہ اقساط میں، ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں۔ اجوا سٹی، 2 کلومیٹر لالیان جھنگ روڈ، موبائل 0308 8470 555۔ A project of Ajwa Builders۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل بلیٹن میں شامل کریں گے اب تک کی سب سے اہم خبر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زرعی شعبے میں اصلاحات اور کسان دوست پالیسیوں کے مثبت نتائج سامنے آنے لگے۔ پنجاب جدید زرعی میکانائزیشن کے نئے دور میں داخل ہو گیا۔ مریم نواز کی آئندہ مالی سال میں کاشتکاروں کو 20,000 گرین ٹریکٹر دینے کی ہدایت۔ نئے مالی سال میں ہائی ہارس پاور ٹریکٹرز پر 15 لاکھ روپے جبکہ 50 سے 65 ہارس پاور کے ٹریکٹرز پر 7.5 لاکھ روپے سبسڈی فراہم کی جائے گی، جس سے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاشتکاروں کو نمایاں مالی سہولت حاصل ہوگی۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ 12 اقسام کی جدید زرعی مشینری کی خریداری کے لیے 3 کروڑ روپے تک بلا سود قرضوں کی اسکیم بھی متعارف کرائی گئی ہے۔ اس اسکیم کے تحت کاشتکاروں کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ زرعی آلات خریدنے کے لیے آسان شرائط پر مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سپر سیڈر اسکیم کے دوسرے مرحلے میں مزید 5,000 سپر سیڈرز فراہم کرنے کی منظوری بھی دی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ کسان اس جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کر سکیں۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی برائے پنجاب ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ لودھا کا اجلاس ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے صدارت کی۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس اینڈ پلاننگ حافظ محمد ظفر، ڈسٹرکٹ فوکل پرسن محمد عالمگیر، ثاقب نفیس اور طاہر مقصود شریک تھے۔
लौधरा से जलील रहमान के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, समाजी प्रोग्रामों से दही इलाकों के लोगों का म्यार जिंदगी बेहतर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, आगोश प्रोग्राम के तहत दही हामला और दूध पिलाने वाली खवातीन के लिए 38,000 रुपए का पैकेज काबिल सताइश है। चिश्तिया में इंतजामिया और पुलिस का मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर जुल्फिकार अहमद भून और डीपीओ मोहम्मद इमरान ने मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के रूट का दौरा किया। मशरिक डिजिटल के सैयद असद बुखारी के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने कहा कि मजालिस और जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी। उन्होंने जुलूस के रास्तों पर जारी तामीराती काम, बिजली और PTCL के खंभे हटाने का काम 5 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। वफाकी बजट 2026-27 की तैयारियों के दौरान सनती हलकों की नजरें हुकूमती पॉलिसियों पर मरकूज हो गई हैं। मुल्क के बड़े सनती शहर फैसलाबाद के कारोबारी और सनती नुमाइंदे तवक्को कर रहे हैं कि आइंदा बजट में सनती शोबे को दरपेश मसाइल के हल के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। मजीद देखिए मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे शबीर हुसैन आज़ाद की इस रिपोर्ट में। वफाकी बजट 2026 और 27 से कबल सनती शोबे की जानिब से मुख्तलिफ तजावीज़ और मुतालिबात सामने आना शुरू हो गए हैं। कारोबारी हलकों का कहना है कि मुल्क की मईशियत में सनतों का किरदार बुनियादी हैसियत रखता है, इसलिए ऐसे इक़दामात किए जाएं जो पैदावारी लागत में कमी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे का बायस बन सकें। सनती नुमाइंदों के मुताबिक बरामदात के फरोग के लिए पॉलिसियों में मजीद आसानियां पैदा की जाएं, खाम माल और सनती मशीनरी की दरामद से मुताल्लिक तरीक़ा कार को आसान बनाया जाए, जबकि बरामद कुनंदगान को वाजिबुल अदा रुकूम और रिफंड्स की बरवक्त अदायगी यकीनी बनाई जाए ताकि कारोबारी सरगर्मियों में तसलसल बरकरार रहे। मुतबादिल तवानाई के शोबे को भी सनतकार अहम करार दे रहे हैं। इनका कहना है कि तवानाई के बढ़ते हुए अखराजात के पेश नज़र सोलर एनर्जी समेत दीगर मुतबादिल ज़राए की हौसला अफजाई जरूरी है। इस मकसद के लिए सोलर सिस्टम्स और मुताल्लिका आलात पर इजाफी माली बोझ से गुरेज किया जाए और सनतों को मुतबादिल तवानाई की जानिब मुंतकिल करने के लिए आसान माली सहूलियात फराहम की जाएं। कारोबारी बरादरी के मुताबिक आइंदा वफाकी बजट सनती शोबे के लिए अहमियत का हामिल है। सनतकारों की तवक्को है कि बजट में ऐसे इक़दामात शामिल किए जाएंगे जो सनती तरक्की, बरामदात में इजाफे और माशी इस्तेहकाम के अहदाफ के हुसूल में मददगार साबित हों। अब तमाम नजरें हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले बजट पर मरकूज हैं कि वो सनती शोबे की तवक्कुआत पर किस हद तक पूरा उतरता है। कैमरा मैन दानिश चौधरी के साथ शब्बीर हुसैन आज़ाद, मशरिक डिजिटल, फैसलाबाद। पाकपतन नहर में 50 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। पानी के तेज बहाव से वसी ज़री रकबा ज़ेरे आब आ गया, जबकि सरकारी मशीनरी ताहाल मौके पर नहीं पहुंच सकी। मकामी अफराद अपनी मददात के तहत शिगाफ बंद करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। मशरिक डिजिटल के इमरान साही की रिपोर्ट के मुताबिक नवाही गांव 69D के करीब नहर में अचानक 50 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया, जिसके बाद पानी का रेला करीबी खेतों में दाखिल हो गया और बड़ी तादाद में ज़री रकबा ज़ेरे आब आ गया, जबकि खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचने का खदशा पैदा हो गया। इलाका मकीनों के मुताबिक वाक़े की इत्तला मुतल्लिका हुकाम को देने के बावजूद सरकारी मशीनरी मौके पर नहीं पहुँच सकी। मकामी अफराद अपनी मददात के तहत शिगाफ बंद करने और पानी के बहाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देहातियों का कहना है कि अगर शिगाफ को फौरी तौर पर बंद ना किया गया तो पानी मजीद इलाकों में फैल सकता है, जिससे मजीद ज़री अराज़ी और करीबी देहात मुतासिर होने का खदशा है। DS रेलवे लाहौर के अहकामात पर 4 दहाइयों पुराने नाजायज़ काबज़ीन से 40 मिलियन की रेलवे अराज़ी वागुजार। DSP इनामुल्लाह की खसूसी अहकामात की रोशनी में रेलवे ईस्ट कॉलोनी फैसलाबाद में ग्रैंड इंसदाद तजावज़ात ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। फैसलाबाद से दानिश शबीर के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 40 साल से ज़्यादा अरसे से कायम 9 गैर कानूनी रिहायशी मकानात जो पुख्ता तजावज़ात की सूरत में रेलवे अराज़ी पर मौजूद थे, रेलवे इंतज़ामिया और रेलवे मजदूरों की मदद से मसमार कर दिए गए। ऑपरेशन की निगरानी SP रेलवे पुलिस लाहौर ने की, जबकि मुतल्लिका रेलवे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इंस्पेक्टर ऑफ वर्क्स फैसलाबाद, SHO फैसलाबाद और SHO जड़ावाला की मौजूदगी में ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। मौलाना हाफिज डॉक्टर मोहम्मद इमरान निज़ामी इमाम खतीब बाबा फरीद रहमतुल्लाह दरबार मस्जिद पाकपतन शरीफ ने कहा है कि हमें अपनी आने वाली नौजवान नस्ल को दीनी दुनियावी तालीम के लिए बेहतर माहौल देना चाहिए। उन्होंने कहा, तालीम ही तरक्की का पहिया है। दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करने से दोनों जहानों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हम सबको अपने ज़ाती इख्तलाफात मफादात को छोड़कर इस्लाम के झंडे तले जमा होना चाहिए। मौलाना हाफिज डॉक्टर मोहम्मद इमरान निज़ामी साबिक जनरल सेक्रेटरी चीशावतनी प्रेस क्लब, गुलाम दस्तगीर सहू और सदर अंजुमन सहाफ़िया नवीद रिजवान से गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौके पर जोनल एडमिनिस्ट्रेटर्स महकमा औकाफ बाबर सुल्तान गोंदल, चौधरी मोहम्मद अशरफ, इस्माइल जट, आसिफ रजा जट, चौधरी हुसैन यूनस, हसन मुनीर जट, मिर्ज़ा बाबर, मोहम्मद शमीर समेत दीगर भी मौजूद थे। अब बढ़ते हैं एक वक्फे की तरफ। देखते रहिए मशरिक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने। खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे। आए बात करें,
पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, नाकिस नीमको पापड़ तैयार करने वाली फैक्ट्री बंद, भारी जुर्माना आयद। निश्तर टाउन से मोहम्मद शाहजेब के मुताबिक डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा के हुक्म पर शेख कॉलोनी में कार्रवाई की गई, जहां गंदे इस्तेमाल शुदा आयल में नाकिस खाम तेल से स्नैक्स तैयार किए जा रहे थे। नाकिस स्नैक्स को दिलकश पैकिंग लगाकर लाहौर की होलसेल मार्केट में सप्लाई किया जाना था। डीजी फूड अथॉरिटी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि खुराक का कारोबार पंजाब फूड अथॉरिटी लाइसेंस के बगैर किया जा रहा था। खाम माल और तैयार स्नैक्स ज़मीन पर बगैर ढांपे रखे पाए गए। सफाई के नाकिस इंतजामात, मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े पाए गए। नाकिस स्टोरेज, जंग आलूदा बर्तनों का इस्तेमाल, आयज़दा फर्श पर तैयारी की जा रही थी। चिन्योट से काशिफ सरवर की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां रिहायशी इलाकों में कायम गैर कानूनी फैक्ट्रियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान की हिदायत पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने रिहायशी इलाके में गैर कानूनी चमड़ा साज फैक्ट्री मुस्मार कर दी, जबकि खालों का गोदाम भी मुस्मार कर दिया गया। उकाड़ा से महबूब अली कादरी की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां दीपालपुर चौक ओवर हेड ब्रिज के नीचे स्पोर्ट्स अरीना की इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद की गई। मेहमानान खसूसी MPA मियां मोहम्मद मुनीर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद सलीम चिश्ती ने स्पोर्ट्स अरीना का इफ्तिताह किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मिर्जा रहील बेग, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी उमर नसीम और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर मोहम्मद इशफाक भी मौजूद थे। MPA मियां मोहम्मद मुनीर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक हुकूमत पंजाब खेलों की तरक्की के लिए पुरअज़म है। मुख्तलिफ शहरों में ओवर हेड ब्रिजेस के नीचे स्पोर्ट्स अरीना बनाए जा रहे हैं। उकाड़ा में स्पोर्ट्स अरीना से बैडमिंटन और वॉलीबॉल के खेलों को फरोग मिलेगा। चिन्योट से मशरिक डिजिटल के ताहिर रशीद सियाल की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख ने निसार शहीद पार्क में कराची योगा क्लब के इवेंट की सदारत की, जिसमें योगा क्लब की जानिब से कैसर अहमद शेख को ट्रॉफी अवार्ड की गई। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी ने ट्रॉफी अपने भाई शाहिद उमर शेख के नाम कर दी और कहा कि उनकी सियासी कामयाबियों के सफ़र में जो इस वक्त तक काबीना की अहम तरीन वजारत तक पहुँच चुका है, में शाहिद उमर शेख का बहुत बड़ा किरदार है। उन्होंने कहा, शाहिद उमर शेख ने हर कदम पर मेरा साथ दिया है, जिसके एतराफ़ में ये ट्रॉफ़ी और कामयाबी शाहिद उमर शेख के नाम करता हूँ। इस मौके पर शाहिद उमर शेख ने एवार्ड वसूल करते हुए कहा, यह चिन्योट की शेख और ताज बरादरी और आवाम के लिए एजाज़ है। सरगोदा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में डिवीजनल स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम इंटर डिस्ट्रिक्ट गर्ल्स एंड बॉयज़ एथलीट्स चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें सरगोदा, खुशाब, बकर और मियाँ वाली के मेल और फीमेल खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ मुकाबलों में भरपूर शिरकत की। मशरक डिजिटल के महद नवीद अख्तर के मुताबिक चैंपियनशिप में गर्ल्स और बॉयज़ के मुकाबला जात अलग अलग मुनक्किद किए गए, जिनमें 100, 200 और 400 मीटर रेस, रेले रेस, लॉन्ग जंप, नेज़ा फेंकने, थाली फेंकने और गोला फेंकने के मुकाबले शामिल थे। नौजवान खिलाड़ियों ने भरपूर जोश और जज्बे के साथ अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। मुकाबलों की निगरानी डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर राना नदीम अंजम, जबकि इंतजामात डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर सरगोदा साइमा मंजूर की ज़ेर निगरानी मुकम्मल किए गए। चैंपियनशिप के इख्तिताम पर नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग घरेलू सार्फिन के लिए वबाले जान बन गई। मुकर्रर शेड्यूल के बावजूद गैस की फराहमी में कमी, महदूद औकात कार के बावजूद गैस आधा घंटा पहले बंद करना मामूल बन गया। जनाब नगर से बिलाल वराइज की रिपोर्ट के मुताबिक गैस के कम प्रेशर के बायस घरेलू खवातीन को खाना तैयार करने में दुश्वारी पेश आ रही है। शहरियों ने शिकायत की है कि गैस की गैर तसल्ली बख्श फराहमी के बायस उन्हें मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करना पड़ रहे हैं, जिससे घरेलू अखराजात में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब तंदूरों पर रश पड़ गया है और लोग मजबूरी के तहत रोटियां और दीगर अशियाए खुरनोश महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। मकामी रिहायशियों ने मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि गैस लोड शेडिंग के शेड्यूल पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और गैस प्रेशर को बेहतर बनाकर शहरियों को दरपेश मुश्किलात का फौरी इजाला किया जाए। चिन्योट में शदीद गर्मी के बावजूद बिजली की बिला जवाब लोड शेडिंग, शहरियों की जिंदगी अजीरन होकर रह गई। शदीद गर्मी और हब्स में वापटा की जानिब से बिजली की गैर इलानियाँ और तवील लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन करके रख दी है। दर्जा हरारत में इजाफे के साथ ही बिजली की आंख मचोली ने आवाम को अजाब में मुब्तला कर दिया है। चिन्योट के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज़ कर चुका है। ऐसे में वापटा हुकाम की जानिब से बिला जवाब बिजली की फराहमी में तातुल ने अवामी हल्कों में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी है। शहरियों का कहना है कि एक तरफ शदीद गर्मी है तो दूसरी तरफ बिजली की अदम दस्तयाबी ने मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासर किया है, जबकि कारोबारी मराकज़ में काम ठप होकर रह गया है, जिससे दिहाड़ीदार तबका बुरी तरह मुतासर है। अब बढ़ते हैं एक और वक्फे की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने। खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे। आए बात करें, पानी, बिजली,
सड़क सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। खबर शामिल करते हैं भिकी से, जहां सुथरा पंजाब प्रोग्राम की नाकिस कारकर्दगी ने आवाम के लिए मसाइल पैदा करने शुरू कर दिए हैं। मशरिक डिजिटल के हाफिज सलीम के मुताबिक पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे को साफ सुथरा बनाने के दावे तो किए जा रहे हैं, मगर भिकी में सुथरा पंजाब प्रोग्राम की कारकर्दगी सवालिया निशान बन चुकी है। गली मोहल्लों, बाजारों और आबादियों में जगह जगह गंदगी के ढेर मामूल बन गए हैं, जबकि बर वक्त सफाई ना होने के बायस शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। नालियों की सफाई ना होने से ताफुन फैल रहा है और शहरियों में मुख्तलिफ बीमारियों का खदशा भी बढ़ता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि कई मकामात पर कचरा कई दिन तक नहीं उठाया जाता, जिसकी वजह से माहौल आलूदा हो रहा है। अहलियान इलाका का कहना है कि अगर बर वक्त इकदाम ना किए गए तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। कसूर श्याम सवेल के मुताबिक थाना शेखम की हदूद हवेली बातिया में फायरिंग का वाक़या पेश आया। कत्ल के मुकदमे में मुद्दई की हमायत करने पर मुसल्लफ अफराद ने घर पर धावा बोल दिया। मुलजमान ने घर में घुसकर एक नौजवान को निशाना बनाते हुए फायरिंग की। गवर्नमेंट स्कूल का क्लर्क शफीक रहमान गोलियों की जद में आ गया और मौके पर ही दम तोड़ गया। मकतूल की वालदा की मदय्यत में मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने FIR दर्ज करके वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। निश्तर टाउन के इलाके बागनिया की यूनियन कौंसिल 240 में जारी तरक्याती कामों पर अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वफाकी वज़ीर राना मुबशिर इकबाल, MPA बीबी वडेरी और मियां इमरान जावेद का शुक्रिया अदा किया है। अहले इलाका का मशरिक डिजिटल से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अपना वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा का, MNA हमारे राना मुबशिर साहब हैं, MPA बीबी वडेरी साहब हैं और MPA मियां इमरान जावेद साहब हैं। तो इलेक्शनों में हमने वादे किए थे, बीबी वडेरी साहबा ने इन हलके में आके लोगों से कि आपकी गलियां कोई चप्पा कोना नहीं रहेगा, सब इंशाल्लाह बनाएंगे। वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने जो बीबी वडेरी साहबा ने वादा किया था वो अल्लाह का शुक्र है हमने सारे मुकम्मल करते जा रहे हैं। कोई सीवरेज, कोई वाटर सप्लाई, कोई गलियों की PCC नहीं रह गई। जिन गलियों की रह गई है अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी हम जल्दी से जल्दी निपटा रहे हैं। और इसके साथ साथ पूरे इलाके का 30 साल से ये मसले थे, सीवरेज नहीं थी 30 साल से, वाटर सप्लाई नहीं थी, उसके साथ PCC नहीं थी, लोगों का बहुत बुरा हाल था। अब अल्लाह का शुक्र है PCC, सीवरेज सारे काम हमारे हो रहे हैं। इधर मैं अपना माजी बीबी वडेरी साहबा का दिल के था गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इलेक्शनों में इन गलियों में माजी पैदल आए हैं। मैंने उन्हें गलियाँ दिखाई हैं कि माजी ये 30 साल से ये गलियाँ नहीं बनी। तो अल्लाह का शुक्र है, माजी ने कहा था बेटा आपने फिक्र नहीं करनी, सारे इंशाल्लाह बनाएंगे। जो वादा किया वो पूरा किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह माजी ने पूरा किया। जी, जिस तरह कदीर भाई ने बताया कि ये जो मसला था ये काफ़ी पुराना है। लोगों ने पिछले हुकूमतों में बहुत ज़्यादा कोशिश की लेकिन ये मसला हल ही नहीं हो रहा था। तो इस हुकूमत में कदीर भाई की कोशिश से और ख़ास कर जो क्रेडिट है वो MPA बीबी वडेरी साहबा को जाता है कि इन्होंने ये हमारा मसला हल किया। हम इंशाल्लाह पूरे मोहल्ले वाले इनसे वादा करते हैं कि ये हमारा जो देरीना मसला हल किया है इसके बदले में हमारा वोट सपोर्ट सारा कदीर भाई के साथ और बीबी साहबा के साथ और मौजूदा हुकूमत के साथ है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये जो है ना कदीर भाई का जो है ना कोशिश जो है ना ये हमारा गली बन गया, क्योंकि इधर जो बारिश होता था 4-4 फुट पानी खड़ा होता था, तो हमें बड़ा परेशानी था। और ये जो है ना कदीर साहब ने जो है ना बड़ा कोशिश की है और उसकी वजह से जो है ना हमारा हबीबाबाद से मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे अली हमजा के मुताबिक अल-फरीद एजुकेशन कम्प्लेक्स एंड हेल्थ साइंसेज का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, समाजी रहनुमाओं और मरकज़ी प्रेस क्लब हबीबाबाद के वफ़द ने शिरकत की। इदारे में मेडिकल लैब एंड टेक्नोलॉजी, डेंटल टेक्नोलॉजी, नर्सिंग और दीगर हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम में दाखिले जारी हैं, जबकि प्ले ग्रुप से 8वीं जमात तक के तलबा के लिए भी दाखिले किए जा रहे हैं। फूल नगर के सीनियर सहाफ़ी भाई फेरू प्रेस क्लब के सीनियर वाइस चेयरमैन मोहम्मद नईम सुल्तान तवील इलाज के बाद लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इंतकाल कर गए। मशरिक डिजिटल के ताहिर लतीफ़ के मुताबिक मोहम्मद नईम सुल्तान गुज़िश्ता 30 बरस से शोबा सहाफ़त से वाबस्ता थे। सहाफ़ी बरादरी, सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए मरहूम की सहाफ़ती खिदमात को खराज अकीदत पेश किया। मरहूम की नमाज जनाजा दरबार बाबा शेर बहादुर फूल नगर में अदा की गई, जिसमें सहाफ़ियों, सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बाद उन्हें मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शुरकाए जनाजा ने मरहूम की दर्जात की बुलंदी, मगफिरत और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। भारत के स्टार बैटर विराट कोहली अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक विराट कोहली हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से सीरीज में शिरकत नहीं कर सकेंगे। उनके मुतबादिल खिलाड़ी का फैसला
जल्द किया जाएगा। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम रवां माह एक टेस्ट और 3 वनडे मैचेस के लिए भारत का दौरा कर रही है। नामवर अदाकारा मायरा खान ने कहा है कि वो अपनी ज़िंदगी के मौजूदा मरहले से मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। उन्होंने इस बात की कोई फिक्र नहीं कि एक वक्त ऐसा आएगा जब उन्हें रवायती हीरोइन के किरदार मिलना बंद हो जाएंगे। दुबई में मुनक्किदा एक अदबी और सकाफती तकरीब के दौरान गुफ्तगू करते हुए मायरा खान ने कहा कि उन्हें कामयाबी और मदाहों की मोहब्बत दोनों बेहद अजीज़ हैं और वो अपने फैंस के साथ ताल्लुक़ को अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा समझती हैं। मायरा खान का कहना था कि उन्हें खुशी होती है जब लोग उनसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, ताहम वो ये हकीकत भी तस्लीम करती हैं कि शोहरत और मकबूलियत हमेशा बरकरार नहीं रहती, इसलिए वो उन्हें अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं समझती। उन्होंने कहा कि वो इस हकीकत के साथ मुकम्मल तौर पर मुतमईन है कि ये वक्त के साथ रवायती हीरोइन के किरदार कम भी हो सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।